Zishan sir, please आप अपने को introduce करें, and we want to keep it interactive as you had said, but if we can try and keep it brief so that there's a conversation. The conversation will be on budget, but there's obviously other issues which members would like to talk about. But let's talk about the budget first, and then we can take it from there. IMF is also something I'd like to talk about. So, Zishan sir, the floor is yours. Thank you very much for having me over. My name is Zishan Merchant. I am a tax and corporate lawyer. I've been practicing taxes since now over 24 years. I joined with my father at the age of 20, and since then I've been working with him, and it was my passion to work with my father. And at the age when I was in school, I thought that whatever my father was doing, I have to follow him. So it's been my passion since then, and the fire is still there. I'm still enjoying this. So I was the president of Karachi Tax Bar. I just relinquished my charge this March, and now I am just a former president. You can say me as a former president. I always like to quote this before I begin. I would always like to quote this quotation from Nahjul Balagha, and it's very, very. It seems very pertinent till date. And whenever I recite this and whenever I read this, it gives me a bit of insight as to what needs to be done, and not only at our level, at any level. This is very pertinent. So I'd just like to start with this, that the submission to Allah's will is the best companion. Wisdom is the noblest heritage. Theoretical and practical knowledge, we'll discuss on this, are the best signs of distinction. Deep thinking will present the clearest picture of every problem. So practical and theoretical knowledge and deep thinking. These are three things that we can discuss and argue about it, which is very relevant while preparing anything, and this is more so important while preparing the federal budget. Just as you said, Jayad sir, I'll try to be very brief, and we'll try to keep it interactive or Q&A wise as आप समझते हैं. तो ये बेसिक चेंजेस हैं जो टैक्स लॉ में इस दफा हुए. पोवर्टी एलिवेशन एंड सुपर टैक्स, इसका नाम पहले पोवर्टी एलिवेशन दिया गया, फिर सुपर टैक्स दिया गया. इसको फिर डिस्कस करते हैं आगे चल के लेटर ऑन. एक न्यू कॉन्सेप्ट. थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हैं जरा, आपकी आवाज मुझे तो एटलीस्ट कम आ रही है. आई डोंट नो बाकियों के लिए शायद सही आ रही हो. थोड़ा सा माइक में जरा. ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और जोर से बात करूँ. सॉरी फॉर इंटरप्शन. नो वरीज. एक तो पुअर्टी एलिविएशन, जिसको बाद में सुपर टैक्स का नाम दिया गया है. प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुपर टैक्स भी कहा इसको, और अब ये सुपर टैक्स और पुअर्टी एलिविएशन को हम डिस्क्राइब करेंगे. एक मिफ्ता साहब बड़ा प्राइड ले रहे हैं कि हमने एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया है, डीम्ड इनकम का. और ये डीम्ड इनकम को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट है या ये अदर, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड स्टूपिड अमेंडमेंट है. कैपिटल गेन्स ऑन विद इमूवेबल प्रॉपर्टी का टेन्योर जो है वो 4 साल से 6 साल एक्सटेंशन है. विड्रॉल्स ऑफ टैक्स क्रेडिट एंड डिडक्टेबल अलाउंसेस है. इस पे भी मिफ्ता साहब जो सैलरी टैक्स पेयर है उसके लिए बहुत कह रहे हैं कि मेरा दिल में बड़ा दर्द है और मेरे दिल में बड़ा वो है कि उनको लेस टैक्स लगे. हमने इमरान खान से भी जो है कि टेन्योर से कम टैक्स कर दिया है, 2.5% कर दिया है. पहले 0 किया था, फिर अब 2.5% कर दिया है, और लेकिन टैक्स क्रेडिट सारे खत्म कर दिए. रेसिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन को चेंज किया है, विल डिस्कस ऑन दैट. ट्रेडर्स के लिए स्पेशल स्कीम लेके आए हैं. मिनिमम टैक्स जो है वो खत्म कर दिया है, एडजस्टमेंट लॉ में पहले अवेलेबल था 5 साल के लिए, उसको खत्म कर दिया है. मोबाइल सिम्स को ब्लॉक करने का प्रोविजन डाल दिया है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस को काटने का प्रोविजन डाल दिया है, इंपोर्ट को दोबारा फाइनल टैक्स कर दिया है. और ये एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग, इस पे कोई डिबेट नहीं कर रहा, कि जो टाइम लिमिटेशन फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स फॉर फॉरेन एसेट्स, इसको इन्होंने अनलिमिटेड कर दिया. इस पे कोई डिबेट नहीं हो रही, हम थोड़ा सा इसको टच करेंगे. ये इनकम टैक्स साइड पे मेजर अमेंडमेंट्स हैं जिसपे कुछ बात की जा सकती है. सेल्स टैक्स पे कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन रिटेलर्स की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज लेके आए हैं, टीयर 1 की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज लेके आए हैं.
फर्दर टैक्स में थोड़ा सा चेंज लेके आए हैं, डॉक्यूमेंटेशन को खत्म करने के लिए थोड़ा सा चेंज लेके आए हैं, और प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज को जो एडजस्टमेंट अलाउ थी 8B की, उसको वापस से खत्म कर दिया है। और ये एक इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है CVT ऑन मोटर व्हीकल्स हेल्ड इन पाकिस्तान इन एक्सेस ऑफ 5 मिलियन, उस पर रेट है 2%। और फॉरेन एसेट्स जो भी हैं पाकिस्तान से बाहर, इफ दे वैल्यू ओवर 100 मिलियन इन एक्सेस, जो भी उसकी वैल्यू होगी उस पर 1% CVT जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। सो सुपर टैक्स के ऊपर बहुत सारी बात की, और सुपर टैक्स कहते हैं कि 13 सेक्टर्स पे लगाया है इन्होंने। मैंने उसको अंडरलाइन और बोल्ड कर दिया है for you all to just view it. It is imposed at 10% one-time super tax, but that includes 4% poverty alleviation. So it is a mixture of two, 4% and 6%. They say that 6% will be paid for just 1 year, whereas 4% is a perpetual tax. So I was just wondering that why poverty alleviation tax and why not they increase the tax rate, because individuals are being taxed at 35%, same as with AOPs, and corporate rate is though 29%, but that if you add 4% is going to be 33%. Banks are being taxed at 45, and this 10% will another hit to them, 55% का tax हो जाएगा. So this tax was never there, super tax, but you know कि हम जब बजट इंट्रोड्यूस किया था तो उस वक्त मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, I mean I feel that this government was never wanting to announce this budget. Then they were forced into this budget and they were unprepared. They said that they're going to achieve for the next year. They have kept the target. Initially they kept the target at 7 trillion, which is now increased to 7.455 trillion. By the way, today we reached 6 trillion target. The history has been made, and it is the first time that in one financial year we achieved two tax targets. One was 5 trillion rupees and the other is 6 trillion rupees. This is something to be appreciated, that if we are, despite everything, achieve this 6 trillion target, and they are well on course to achieve another 100 and to achieve the 6.1 by the 30th of June, inshallah. So this is super taxes on these 13 sectors. It is in addition to 4% of poverty alleviation, and it is for 1 year per se for now. But आपको सबको याद होगा कि सुपर टैक्स भी 1 साल के लिए पहले आया था. जो चैलेंज हुआ वो 1 साल के लिए आया था, फिर वो सक्सेसिवली अप टिल टुडे वो लगा हुआ है. 2015 में आया था 16-17 जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए आया था. नाउ दिस इज अभी तक है, इस साल से खत्म होना था, तो अब उन्होंने नया टैक्स लगा दिया है दोबारा से सुपर टैक्स को, और वो अब 10% पे लेंगे. इनिशियली ये पोवर्टी एलिविएशन टैक्स था, ये 2% था. इट वाज ओवर 300 मिलियन, बट नाउ they have slab wise they have changed the rates, and it is now 1, 2, 3 and 4 on the incomes exceeding 150 million, 200, 250 and 300 million. So ये taxes देने पड़ेंगे, और ये इससे जो है वो उन्होंने अपने जो 7 ट्रिलियन से 7.4 ट्रिलियन पे गए, तो आई एम श्योर वो इससे कुछ ना कुछ इससे इनकी कंप्यूटेशन करेंगे. डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया मिफ्ता इस्माइल साहब. इसमें बहुत प्राइड ले रहे हैं कि हमने एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ गए हैं, और इसमें है ये कि अगर आपका ओपन प्लॉट भी है और वो आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसको जो है 1% ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स करने की बात की है. दे विल कंसिडर इट एन ओपन प्लॉट एज अ रेंटेड प्रॉपर्टी, एंड दे विल ट्रीट इट एज अ रेंटेड प्रॉपर्टी, और उस पर 1% टैक्स दे देंगे. इसमें अब कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, कुछ चीज़ों को चेंज किया जा रहा है एज वी स्पीक. तो जब ये फाइनेंस एक्ट आएगा तो देयर विल बी अनदर चेंज इन दैट. फार्म हाउसेस को इसमें लिया जा रहा है, तो उस पर भी टैक्स करना है. सो अहमद, आई थिंक यू हैव अ क्वेश्चन, सो यू कैन शूट एंड वी कैन डिस्कस. जी थैंक यू. मैं पिछले वाले पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाह रहा था, जो ये सुपर टैक्स वाला है, कि
तो इसमें ये जो 4% सुपर टैक्स है, जो पॉवर्टी एलिविएशन टैक्स जिसको ये कह रहे हैं, ये पहले से एग्जिस्ट करता था, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कि रिलोकेशन वाला जो पहले इशू आया था और वो इम्पोज No, super tax was there since 2015. It was for internally displaced persons. जब वो हमारी वॉर एंड टेरर चल रही थी, जो उसमें लोग डिस्प्लेस हुए थे, उनके लिए ये 2% पहले से था। वो पहले से था, तो वो इस साल एंड हो रहा था और वो खत्म हो रहा था। वो खत्म हो रहा था। अब वो खत्म होगा और उसकी जगह पे ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें एक आपका ये बेस टैक्स है जो 4% तक जा रहा है और फिर आपके पास 6% ऑन टॉप ऑफ इट है। Another, yes, और ये 6% will be for 1 year as per the news and as per all their press talks, and this 4% would be perpetual. I don't know. This was super tax was challenged before the higher courts. The taxpayers lost, and they are now before the Supreme Court. And it is for presently, the Supreme Court has provided stay to those who have paid the 50% of the tax demanded in the cases where the liability has been assessed. So it is still test in the courts, and the fate of it we don't know. But in my view, they should have increased the tax rate instead of going about this way. And this is again going to be tested at the court superior forums, and I think this would sustain. But the next point that we were discussing, that the deemed income concept, that would be thrown out from the courts. I am aware of this, that even FBR was not willing to levy this deemed income concept tax, but they were forced into it by the finance minister. And if you look at the entry 50 of the Constitution, the federal legislative list, it says that taxes on income, excluding taxes on immovable property. So Miftah Saab has been time and again saying, and with a lot of pride, he is saying all the time, कि हमने 1% tax लगाया हुआ है उन लोगों पे. So I'm sure that this is going to be challenged the day it becomes the act, because this is to be recovered from the tax year 2022 only, meaning thereby जो इस साल return file करेगा उसको ये 1% tax देना होगा. So I'm sure nobody would file their returns by paying this. They're going to challenge this before the High Court, and I'm very certain that the High Court would decide in favor of the taxpayers. This amendment, even FBR thinks that this is going to be thrown out. So in their calculation of the tax revenue allocation, they are not counting the amount of the tax proposed to be collected from this amendment. One more question. Sorry, on the super tax, so this tax is on net profit, right? Because you say annual income, so that's net profit, right? And this will be, so how will this be treated? They'll say, okay, fine, this is how much we have got in terms of corporate tax plus this, and then apply this to the net. Interestingly, there are three kinds of taxes for corporates in Pakistan. There is this annual income tax, then there is this minimum tax of 1%, and then there is alternate corporate tax, which is 17%. And now this is going to be another tax. So out of the first three, whichever is the highest is taken as the tax liability, and it is going to be in addition to that tax, the 4% would be levied on the taxable income. So on the net profit, right? So they won't take that out and then after. No. This will be on top. Not be considered. This is another tax. So essentially, it's like you are paying a higher tax, basically. Yes, that's correct. So for people who have income exceeding 150 million, their effective tax rate is 29 plus 1%. So it is 30%. For 200 million plus, it is going to be 29 plus 2, and then so on and so forth. And if they are from these 13 sectors, then perhaps their tax rate would increase to 4 plus 6%. So that's the way it is going to be. Thank you. So then we were discussing this deemed income concept, and I'm sure it is going to be challenged. There are some exceptions कि आप एक self-owned immovable property को इससे computation से खत्म कर सकते हैं. फिर आप जहाँ पे business कर रहे हैं
को आप खत्म कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहीं कर रहे हैं तो उसको आप एक्सक्लूड करेंगे, और उसके बाद जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं उसका अगर टोटल जो है वो 100 मिलियन बनता है तो आप 25 मिलियन उसमें से एक्सक्लूड करेंगे और 75 मिलियन पे जो है वो 1% टैक्स पे करेंगे। एंड माय कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी इनकम हैज ऑलवेज बीन as per section 15 of the income tax ordinance, which says that a property income, what it constitutes as a property is a four boundary wall, चारों तरफ बाउंड्री हो जाए और उसके ऊपर एक छत। So I do not know that how they are going to tax an open plot by treating or deeming it that the same plot is given on rent. So this is going to be a hassle, and I'm sure would be challenged. So if there is any question on this concept, we can discuss and then we can move. Yeah, Ismail, I think I'm sort of wondering about how much, this is on the second property, right? So this is this tax. Yeah. So on the first property, you don't pay any tax, but then on the second property, you pay a tax. So how will this sort of play around with the Binami kind of thing which goes on in Pakistan's economy? Will this sort of, whoever is the owner, देखिए एक बात तो बड़ा क्लियर है ना कि whosoever is filing tax returns, it is only them who are going to pay this tax. अच्छा. So ये तो हमेशा से होता है ना कि जो सिस्टम में है वही फंसता है. वो तो ठीक हो गया, वो तो बाय डिफॉल्ट आपका बाय डिफॉल्ट यही है ना कि जो पे कर रहा है वही फंसता है, उसी के ऊपर एडिशनल टैक्सेस लगते हैं और उसी के ऊपर ऑडिट्स होते हैं और उन्हीं के ऊपर पेनल्टीज लगती हैं. बट I think मेरा फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू जो इंटरेस्ट था कि क्योंकि पहले हमारे पास we had all these kind of Benami laws came in and then it went still there, very much there, right? So how much room there will be, leaving aside the revenue considerations, okay, now this is there, so people will probably be incentivized to go for these kind of Benami properties, or are there enough laws there कि नहीं वो इतना room नहीं है कि आप अपनी दूसरी property में आराम से बेनामी कर दो? अब बड़ा मुश्किल है, चूंकि फैटिफ की जो रेगुलेशंस हमने जो अडॉप्ट की हैं और उनकी जो हम लॉस को जो अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं, तो बेनामी के लिए जो है वो अब काफी मुश्किल होता जा रहा है रूम, क्योंकि वो उस पे उनके पास लॉ में ये है कि वो खरीद सकते हैं आपसे प्रॉपर्टी, और फिर वो बेनामीदार को प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी नहीं है प्रॉपर्टी, और जिसकी है उसको प्रूव नहीं करना. तो ये दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज, बट इवेंचुअली this actually my question and concern was always there that एक टाइम था हम ये कह रहे थे कि वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन करनी है और वेल्थ क्रिएट करके पाकिस्तान का साइज को जो है वो बढ़ाना है. So I think that this is going to be detrimental. They want that people should not invest in plots and they want to, यानी रेंट सीकिंग करने के लिए वो नहीं चाहते कि रेंट सीकिंग हो, but at the same time मुझे इस बजट में कोई ऐसा मेजर नजर नहीं आया कि जहां पे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई हमने पॉलिसी डिजाइन की हो, या हम अपनी लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हमने जो है इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की हो. हमने तो डॉक्यूमेंटेशन को कम करने की कोशिश की है इस बजट में, और हमने ट्रेडर्स को जो है वो इंसेंटिवाइज किया है, वो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं. बट फॉर डीम्ड इनकम आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू स्टे एंड दिस इज गोइंग टू बी थ्रोन आउट. दैट्स माय व्यू. और इसके ऊपर जो है लॉ बड़ा उन्होंने अभी बनाया है, और इसके ऊपर डिबेट चल रही है. फार्म हाउस को पहले एक्सक्लूड किया था, अब फार्म हाउस को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं. सो आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू इट. पहले ये बात हो रही थी कि जो प्रॉपर्टी रेंट पे भी है और उसकी वैल्यू 1% से कम बन रही है टैक्स की, तो वो डिफरेंशियल ले लेंगे. अब उस टैक्स को जो है डिबेट हो रही है कि उसे खत्म कर देंगे. सो आई डोंट नो, एज आई सेड during the beginning note, they were underprepared. They did not wanted to present this budget. They are in catch 22 after presenting this budget because IMF is taking them for a left, right, center. So they are making changes, and they're going to be changes. Ali Hasnan wants to ask the question. I'm completing my sentence, and I'm going to go to Ali Hassan Saab. And they're going to again change it. जो बिल में नहीं था वो एक्ट में नजर आएगा. जी अली हसन साहब.
नहीं, मेरा छोटा सा सवाल था, I didn't want to interrupt, लेकिन आप पहले फरमा रहे थे कि Benami is getting harder with the FATF provisions. Yeah. So does that mean that we have better records of who owns what now in terms of land records? So मेरे ख्याल से देखिए, अब ये डिजिटाइजेशन जिस तरह से होती चली जा रही है, जैसे सिंध की बहुत सारा लैंड का डाटा अब डिजिटाइज हो गया है. सिमिलरली जो भी जैसे DHA है कराची में या बहरिया टाउन है फॉर दैट मैटर, इनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो ना सिर्फ अवेलेबल हैं विद FPR, बट दे आर providing them the data on a real time basis now. So FBR is getting much more equipped than before, and whatever transactions are happening, they are being mostly reported on a timely basis, and उसमें जो है अब काम मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर तरीके से. Right, and I believe that पंजाब में भी काफी हद तक LRMIS का जो प्रोजेक्ट था उसपे सुना है कि 90% तक हो गया है thereabouts. So मेरे ख्याल से डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन तो बहुत तेजी से हो रही है चीजों की, एंड गोइंग फॉरवर्ड मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन इज द ओनली वे टू गो अबाउट इट. अदरवाइज तो हम कहीं ठहर ही नहीं सकते, क्योंकि मसला ये है कि हम टैक्स टू GDP की बात करते हैं. मैंने कल जावेद साहब को जो है एक वो स्क्रीनशॉट एक बुक से मैं जो जिसको देख रहा था जिसमें कंज्यूमर पैटर्न्स हैं ओवर द लास्ट 10 years, उसमें हमारी तकरीबन 50% पॉपुलेशन जो है इट इज अप टू द एज ऑफ 20 years. So while we say that tax to GDP is 10% or close to 10%, I mean, after going through that page, I'm of the view that it is about 18 to 20%, because up to 19 years of age, you don't expect anybody to start working and contributing in the tax net. And your 67% population is up to the age of 30 years. So, I mean, given any benchmark, to say that we are less than 10%, I don't know, you guys are economists, you guys are better, you can better understand and divulge on that, but I am no expert. So I will, as a layman, I would say that the tax to GDP ratio, I think, is much more than that. But indirectly, we all are paying taxes. So the tax to GDP is much higher. वो तो मैं एक different angle से बताऊंगा कि हमारी dependent population बहुत high है, and that is a problem in terms of both savings and the taxation. So that population growth rate, that's an issue. So but it's a valid point you make कि वो consideration करनी चाहिए जब हम लोग tax to GDP देखते हैं. Exactly. So I was looking at the FBR data for last 5 years, and their collection of tax pattern was that about 35% was being collected on the direct tax front, and the remaining 65% was being collected on the indirect tax front. And out of that 35%, 80% is collected through withholdings. You and we all are collecting on behalf of FBR. So if I were to say that my FBR's net collection from indirect taxation and withholding is close to about 80% or more. So I mean, it's very staggering figure for me. बिल्कुल ठीक है. ज़िशान साहब, the second part of my question was, आप पहले कह रहे थे कि we only go after filers. अगर हमारे पास property records इतने ठीक हैं, what is the barrier to going after non-filers? Will. That's about it. That's about it. There are no two views in that. So and Merchant sir, sorry to interrupt, but इसी point को अगर मैं last presentation में हसनैन साहब ने दिखाया था कि जो even filers हैं, the kind of returns that they are submitting, उसमें तो more than half are actually paying nothing. Let me just give you a brief. There are about 3 million tax filers in Pakistan. That is income tax, and about close to 200,000 sales tax registered persons. That's an eye opener, that less than 200,000 people are registered for sales tax in Pakistan. And this is, मैं आपको बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, वैसे 1.5 लाख के करीब है, लेकिन मैं close to 2 लाख कहता हूँ. So out of those 3 million people, a wild guess, if anybody can take, how much is the income distribution, tax distribution. जैसे अभी आप 50% कह रहे थे,
So I'll just try. I want to correct. Okay, about 1,000 to 1,500 companies pay your 85% of tax. Good God. About 1,000 to maximum 1,500 companies or individuals or corporations pay your more than 85% of tax level. I mean, and the rest indirect? इंडायरेक्ट पे आ भी आता हूँ. इनडायरेक्ट पे तो है ही 2 लाख, तो वो वैसे ही उससे कम हो गए. सो यही वो 1,000 या 1,500 कंपनीज है. सो आप कभी इसकी हमारे जो टैक्स की स्ट्रक्चराइजेशन है उसको देखिएगा कि वो किस तरीके से होता है. आई कैन डिस्कस on hours and hours. Ikram Sahab and I, we are subscribing this low rate flat taxation, and I'm sure Ali Salman has been a proponent of that. Yeah, proponent of that. And wherever I get a chance on any television channel, I say it out loud that the higher the tax rate, the lesser the smuggling, the lesser the tax evasion. Thank you so much for saying ये मेरी बात नहीं मानते ज़ीशान साहब. Thank you so much for endorsing this. ये EAG वाली मेरी बात नहीं मानते. नहीं मैं इसमें out loud कहूँगा क्योंकि मैं उसकी reason दे सकता हूँ. I was working for Federation in 2014 and we were preparing the shadow budget of and we worked out कि जो उस वक्त का sales tax और आज का sales tax rate भी अलबत्ता 17% plus 3% है. तो smuggled goods were coming in Pakistan at 19%, and we were paying 20% on account of sales tax, 5% on account of income tax, 10% on account of custom duties, 1% on account of insurance, 1% on account of freight. So मैंने एक working की थी तो about 40% जो है वो official channel से लाने में मुझे pay करना पड़ता था, और ये 19 से 20% में मुझे smuggled goods घर पे मिलते थे. So we suggested to FBR that if you reduce the rate of sales tax to a level equal to smuggling rate, तो लोग गुड स्मगल नहीं होंगे, वो आपकी ऑफिशियल इकोनॉमी में आ जाएगा, क्योंकि स्मगलिंग का हर वक्त रिस्क रहता है और ये रिस्क जो है कोई भी कैरी नहीं करना चाहता. तो अगर आप इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को इस तरीके से एक सिमुलेशन कर लीजिए उसकी कि आपका स्मगल गुड्स, सबको पता है कि पाकिस्तान में कितना गुड्स स्मगल हो रहा है, तो अगर आप उस स्मगल्ड गुड्स को जो है उसको एक उसका पोर्शन जो है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में ले जाते हैं, तो ना सिर्फ आपके इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, सेल्स टैक्स भी बढ़ जाएगा, कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ जाएंगी और आपके टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएंगे. सो दिस वाज एक्चुअली थोड़ा सा टॉपिक से हट गए, बट गेन और रिमूव प्रॉपर्टीज पे वापस आ जाए जी. तो ये 4 साल था. मेरा क्वेश्चन था ये जो आपकी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कि ये जो परसेंटेजेस लिखी हुई है ये वैल्यूएशन कौन कर रहा है, वो किधर से आ रही है, कौन सा रेट है? मैं बताता हूँ आपको. देखिए कैपिटल गेन्स जो है हमारा कैलकुलेट होता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ FBR. FBR ने हर सिटी के लिए जो है वो FMVs जो है वो पब्लिश की हुई और वो पीरियोडिक बेसिस पे इसको चेंज करता है. सो देयर इज दिस DC रेट, देयर इज दिस FBR रेट एंड देयर इज दिस एक्चुअल मार्केट रेट. देयर आर 3 रेट्स वी आर फॉलोइंग. एट मार्केट रेट वी ट्रेड, उसका जो डिफरेंशियल होता है वो आउट ऑफ बुक्स जाता है, और अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसका व्हाइट मनी ब्लैक मनी हो जाता है. FBR उसके लिए कोई और रेट कहता है which is close to now 60 to 65% and in some case about equal to market value. But DC rates have not been changed. कुछ जगहों पे सिंध में कुछ चेंज किया था इन्होंने, but बाकी प्रोविंसेस में I'm sure नहीं हुआ. तो अब वो जो 4 साल का होल्डिंग पीरियड था उसको इंक्रीज किया है इन्होंने 6 साल पे. तो ओपन प्लॉट्स के लिए 6 साल है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज के लिए 4 साल है, और जो फ्लैट्स हैं उनके लिए 2 साल है. तो दिस इज हाउ दिस टैक्सेशन इज ऑन गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी. जो पहले 4 साल था अब वो 6 साल, 4 साल और 2 साल हो गया. सो दिस इज जस्ट अ टैबुलेशन फॉर यू ऑल के इसमें अगर आप देख लेते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर है और इसमें कोई फर्दर चीज मेरे ख्याल से है. तो इसमें मिस्टर साहब, if you hold the property for let's say more than whatever the threshold is, then you don't pay any taxes after that on the capital gain after that. But tomorrow let's say अगर आपने, जैसे अभी मेरे पास रियल एग्जांपल है कि इस जून में मेरे पास वो प्रॉपर्टी जो है
3 साल कंप्लीट करके अगले जून में 4 साल हो जाना था, तो वो टैक्स फ्री हो जानी थी, लेकिन अब वो 6 साल हो गया चूंकि लॉ ड्यूरिंग द पेंडेंसी आ गया है, एंड वो हो जाएगा। या जिसका इस जून में 4 साल हो गया है, वो अगर बेच देता है इसको, अगले साल बेचता है, तो वो अब 6 साल हो गया तो उसको 2 साल का टैक्स लग जाएगा। और लेकिन कैपिटल गेन तो वो तो प्राइस में जो इंक्रीज आया है वो होगा ना, तो वो ऑब्वियसली जो एसपीआर की अपडेट हो रही है उससे आएगा वो। जी, आपकी एक डिक्लेयर्ड कॉस्ट होती है जो वेल्थ स्टेटमेंट में आप डिक्लेयर करते हैं अपने। लेट्स से आपने एक प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया हुआ 100 मिलियन पे, जो आज से 4 साल पहले का एफबीआर रेट था। आज उसका एफबीआर रेट है लेट्स से 150 मिलियन। सो योर कॉस्ट वर्सेस योर सेलिंग प्राइस would be differential would be 50 million. I think we should try and proceed, otherwise we're to both other. It's going to take a lot of time. Yeah. So ये वो allowances हैं जो सैलरी टैक्सेशन के ऊपर से खत्म कर दिए हैं। तो इफेक्टिवली सैलरी टैक्सेशन जो है वो बढ़ गई है, कम नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ रेट्स रिवाइज कर दिए हैं और दूसरी तरफ ये जो टैक्स क्रेडिट्स मिलते थे ये डिलीट कर दिए उन्होंने लॉ से। तो अब गोइंग फॉरवर्ड सैलरी टैक्सेशन पे इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा। सो ये मैं सैलरी टैक्सेशन को, सैलरी क्लास को हमेशा कहता हूँ कि दे आर ऑनेस्ट फोर्स्ड टैक्स पेयर्स ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उनकी सैलरी से टैक्स कट जाता है। एंड स्टूपिड, आई कैन नॉट से स्टूपिड, बट वो उनके पास चॉइस नहीं है क्योंकि उनका एम्प्लॉयर टैक्स काट के दे देता है। रेसिडेंट इंडिविजुअल में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को ऐड किया है, and that concept is that if you are not a resident of Pakistan and you are not a resident elsewhere in the world also, then you are a resident of Pakistan. So अगर आप पाकिस्तान में 183 days नहीं रहते, लेकिन आप किसी और कंट्री में भी रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि आप वहां पे भी वो उनकी टैक्स टाइम लिमिट्स को पूरा नहीं करते, then you become the resident of Pakistan. So this is a smart move, and इसमें जो लोग टैक्स को वो करना चाहते हैं, अपना क्या कहते हैं, टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ जाएंगी। रिटेलर्स के लिए उन्होंने जो है, जो अदर देन टीयर 1 रिटेलर्स हैं, उनकी बिजली के बिलों से टैक्स लेंगे और वो उनको फिक्स टैक्स रिजीम में ले आए हैं। 3,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का टैक्स लेंगे और अप टू 50,000 रुपीज का टैक्स लेना है उन्होंने। ये कहते हैं कि जी 25 लाख ऐसे रिटेलर्स हैं जिनसे टैक्स लिया जाएगा, लेकिन वो टैक्स पहले भी सेल्स टैक्स में लिया जा रहा था इन वन वे और दी अदर, और उसको जो है अब खत्म करके ये टैक्स कलेक्शन करेंगे। मेरी एफबीआर के कुछ लोग जो पॉलिसी का बजट का पार्ट थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये हमें प्रेशर में करना पड़ा है, ये पॉलिटिकल स्टंट है और इससे टैक्स कलेक्ट नहीं होने वाला और इससे इवेजन भी बढ़ जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोलर पैनल्स लगा के अपने बिजली के बिल को रिड्यूस कर देंगे और वो उस स्मॉल ब्रैकेट में आ जाएंगे कि जहां पे वो 5,000 या 3,000 या 10,000 रुपए टैक्स देंगे। सो दिस अमेंडमेंट इज अ पॉलिटिकल अमेंडमेंट एंड डज नॉट, इसका कोई रिलेशन उससे नहीं है टैक्स कलेक्शन से। पहले मिनिमम टैक्स को आप जो पे करते थे, अगर आपका प्रॉफिट नहीं होता था ज्यादा, तो आप 1% या 1.5% ऑफ जो टर्नओवर टैक्स पे करते थे, वो 5% आप 5 साल में, सक्सेसिव 5 साल में आपको इसकी एडजस्टमेंट अलाउड थी। अब उन्होंने इस साल आके इस अमेंडमेंट को जो है वो डिलीट कर दिया। सो मिनिमम टैक्स इज नॉट एडजस्टेबल फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स। लाइक आई सेड कि हमारी मोबाइल की सिम्स को और बिजली के कनेक्शंस को काटना चाहते हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा। ये फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट में लेकर आए थे और अब इसको बिल का पार्ट बना के एक्ट, इसको ऑर्डिनेंस का पार्ट बना के। इंपोर्ट्स जो 2019 में शबर जैदी साहब ने उसको टैक्स को मिनिमम कर दिया था और उनको नॉर्मल रिजीम में ले गए थे, और उन्होंने कहा 2 साल से हमें ये यूज टू कराया कि जी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइल करना, हमने बनाना भी सीख लिया था और फाइल करना भी शुरू कर दिया था। तो अब उन्होंने कहा कि जी इंपोर्ट को जो है वापस से फाइनल टैक्स रिजीम में ले जाएगा और फाइनल टैक्स रिजीम में ये चली जाएगी। और अब सुन रहे हैं कि दोबारा से इसके ऊपर रीथिंक कर रहे हैं। तो ये 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप्स बैकवर्ड वाली बात है कि एक तरफ आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, बट दूसरी तरफ आपने इंपोर्टर्स को दोबारा से फाइनल टैक्स रिजीम में ले गए हो। ये पॉलिटिकल स्टंट है अगेन। ये जो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कॉन्शियसली इसको लेके आया गया है और इससे मैं समझता हूँ कि वो अपने वोटर्स को खुश करेंगे, नथिंग मच।
but that's a step towards non-documentation. Sorry, what do you mean by sales? I'm sorry, can you just hold एक second के लिए? ये मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों, I mean the whole pattern has been over the last 2 years to bring about documentation. Why do we want to move away from that? ये तो I believe really this is I mean they may win over some of the trading classes, but there are other classes which, as we'll realize this, they'll be increasingly more angry. They are because देखिए मैं आपको बताऊं इसमें हो क्या रहा था कि 2 साल से जब ये लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स जमा करा रहे थे तो इनकी विदहोल्डिंग टैक्सेस भी बढ़ गए थे गवर्नमेंट के, ये प्रॉपरली एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करना भी शुरू कर दिया था और इनका हिसाब किताब भी इन्होंने मेंटेन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पहले तो ये प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम में होते थे तो इनकम को इम्प्यूट कर लेते थे कि जितना टैक्स कट गया वर्क बैक कर लिया और उतनी इनकम दिखा दी। अब क्या था कि इनको एज पर लॉ इन्होंने जो है इनकम्स को दिखाना शुरू कर दिया था, तो बहुत ज्यादा केसेस में टैक्स लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई थी लोगों। तो ये मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ दिस मे बी रिवर्स्ड, बिकॉज इस पे कल तक भी डिस्कशन हो रहा था कि एफबीआर ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया हुआ था कि हमने इस पे बहुत मेहनत की और आप इसको रिवर्स करने जा रहे हैं। दैट फ्रॉम एफबीआर स्टैंड पॉइंट दे हैव रिजेंटेड एंड दे हैव शोन देयर स्ट्रॉन्ग इसमें जो एग्रेशन के इसको नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट कम्स इन द फाइनेंस एक्ट। अब वो फाइनेंस एक्ट आएगा तो पता चलेगा कि इसमें क्या होने जा रहा है। बट टिल यस्टरडे दे वर डिस्कसिंग, ये जो मैं बात कर रहा था कि बिजली के बिलों पे जो है वो 3,000, 5,000 और 10,000 लगा दिया गया है टैक्स। पहले जो टैक्स लग रहा था वो 5%, 7.5% लग रहा था, अब हमने उसको कम करके जो है वो 10,000, 5,000 और 3,000 कर। सो आई थिंक ये बड़ा, इससे फायदा नहीं होगा, इससे एफबीआर को नुकसान होगा। ऑब्वियसली पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा इस वक्त की गवर्नमेंट को, लेकिन मैं समझता हूँ कि टैक्स रेवेन्यू में कोई बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं होगी। ज्वेलर्स को जो है वो टीयर 1 रिटेलर में ले आना का इन्होंने कहा है कि हम ज्वेलर्स को टीयर 1 रिटेलर में ले आएंगे। ज्वेलर्स वो आप खुद मिफ्ता साहब कल किसी टीवी चैनल पे कह रहे थे कि पाकिस्तान में सिर्फ 60 ज्वेलर्स हैं जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है आउट ऑफ 30,000 ज्वेलर्स। सो मैं तो बस वो सुन रहा था और मैं अमेज्ड हो रहा था। और अब उन्होंने कहा कि जिनकी 300 स्क्वायर फीट पे दुकान है उन ज्वेलर्स को जो है सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, वो जो है उनको हम फिक्स महीने का जो है वो 10,000 रुपए या 20,000 रुपए टैक्स लगा दें। सो आई डू नॉट नो कि ये जो पूरा एक पहले ज्वेलर्स को टीयर 1 में लेकर आए, फिर अब ज्वेलर्स को टीयर 1 से एक्सक्लूड करने की बात हो रही है। सो मुझे जब मैं जितनी दफा भी इन चीजों को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट और विल ऑफ द गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं है। सो दे डू नॉट वांट टू इम्पोज टैक्सेस। आई हैव बीन सेइंग आउट लाउड कि एफबीआर के ऑफिसर्स को अपने एयर कंडीशन रूम्स से बाहर निकलना पड़ेगा, उनको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। पहले मैपिंग होती थी, एरिया मैपिंग होती थी, वो एरिया मैपिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। तो टैक्स बेस तो बढ़ ही नहीं सकता आपका, क्योंकि आप लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो सिस्टम से बाहर चले जाए। सो इफ टुडे आई वर टू बिकम अ नॉन फाइलर, आई एम मच मोर एट ईज, क्योंकि ना मुझे अपने फॉरेन एसेट, बाय द वे मेरे फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं, मेरे सारे एसेट्स डिक्लेयर्ड है। तो अगर मैं आज नॉन फाइलर बन जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मैंने रिटर्न ही फाइल नहीं करनी आज से, तो मुझ पे वो 1% का सीवीटी भी नहीं लगेगा, मुझ पे जो ये डीम्ड इनकम भी नहीं लगेगी। सो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट चाह रही है लोगों के वो टैक्स नेट से बाहर चले जाए। कैसे कर सकता हूं मैं? आप रिटर्न फाइल ना करें, यू आर नॉन बात करूंगा बाद में। बिल्कुल बात कीजिएगा, आई कैन एडवाइस। That's against the constitutional responsibility, though. You got a client. Anyhow, so this is tier 1's situation. They have imposed penalties where the people who are registered in POS, point of sale, and they are not उनका वो बारकोड प्रिंट नहीं कर रहे प्रॉपर्ली या कोई डुप्लीकेट इनवॉइस प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके लिए लॉ में पेनल्टी प्रिस्क्राइब करनी है, व्हिच इज अ गुड फैक्ट। अब 3(1)(a) फर्दर टैक्स, हमें सबको पता है कि जिन लोगों को टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत है
which they're liable to be registered, they are liable for registration, and they do not get themselves registered. So FBR has imposed a further tax in addition to the standard rate. Standard rate is 17%, and 3% is collected by way of a further tax. Okay, let's say Zishan को register होने की जरूरत थी, Zishan ने जानबूझ के register नहीं किया, तो अब वो जो भी purchase कर रहा है, तो वो 17 plus 3% tax दे रहा है, which is 20% sales tax, और वो कोई उसका input adjustment नहीं मिलता. लेकिन इस दफा पिछले साल में FBR ने एक बड़ी नई इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की. उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ये की कि जो लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और वो इनएक्टिव हो जाते हैं. अब इनएक्टिव कैसे हो सकते हैं कि आपने 2 महीने के सेल्स टैक्स रिटर्न नहीं भरे, आपने 2 क्वार्टर्स के विदहोल्डिंग स्टेटमेंट नहीं भरे, या आपने एक रिटर्न नहीं भरी, या कमिश्नर को आप पे गुस्सा है, तो ही हैज द पावर टू मेक योर कंपनी इनएक्टिव ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन. सो अब लॉ में ये प्रपोजल लेके आए हैं कि जो लोग इनएक्टिव टैक्स पेयर हैं, दो दे आर रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, दे विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, और उनके ऊपर भी फर्दर टैक्स लगाएगा. दिस इज to validate some of the orders which have been passed in large taxpayer office, both at Karachi and at Islamabad. So they want to vindicate themselves, but this is a stupid amendment. This will be challenged and this will be thrown out because there are few decisions of even Commissioner Appeals that they have not agreed to this tax that has been levied by considering the registered tax filers as unregistered person. So it goes with against the very purpose of section 318. So ये harsh वो लेकर आए हैं, मैं नहीं समझता कि ये रहेगा, और this should be done so खत्म कर देना चाहिए, वरना चैलेंज हो. आपको पता है कि शबर साहब एक और अमेंडमेंट जो लेके आए थे वो 2019 में वो ये लेके आए थे कि जो भी सेल करेगा 50,000 रुपए से ऊपर, उसका CNIC नंबर रिपोर्ट करना, और अगर वो CNIC नंबर नहीं देता तो फर्दर टैक्स तो वो दे ही रहा है 3%, लेकिन जो सप्लायर है, जैसे अगर मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं और आप रजिस्टर नहीं हुए हुए और आप अपना CNIC नंबर भी नहीं देते, तो इन एडिशन टू 3% जो आपका कट रहा है, मेरा उस अमाउंट पे जो कॉन्सिक्वेंट इनपुट टैक्स है वो भी डिसअलाउ हो जाए. तो नॉट ओनली यू आर टेकिंग द हिट of 3%, I was taking the hit of that input tax attributable to the output tax amount. So मुझे 3% टैक्स भी देना पड़ रहा था आपका, और मेरा इनपुट भी डिसअलाउ हो रहा था. तो इस पे बड़ी सारी बिजनेस सर्कल्स की रिजेंटमेंट थी, और फिर बिजनेस सेक्टर प्रैक्टिकली ये कह रहे थे कि हमको CNIC तो कोई दे ही नहीं रहा, तो हम ऐसे ही पान वाले के इसके उसके कलेक्ट करते थे CNIC, और वो गलत CNIC नंबर्स डाल रहे थे, चूंकि लॉ को कहीं ना कहीं से तो घुमाना था बिजनेस कम्युनिटी को. तो उन्होंने बड़ा सारा, उन्होंने 2 प्रपोजल्स दिए थे. एक प्रपोजल ये दिया कि अगर हम CNIC देंगे तो हम 3% विद फर्दर टैक्स नहीं देंगे, या तो आप अगर हमसे 3% फर्दर टैक्स लेना चाहते तो आप CNIC की कंडीशन को खत्म कर. तो दिस गवर्नमेंट चोज कि हमें 3% बहुत हकीकत हमें दिल से प्यारा है, और ये 3% तो हम नहीं छोड़ेंगे. सॉरी यार, जब दिन को उसने बताया था तो CMH वाला पेड है, आप वहां ले जाती हैं उसको. साजिद म्यूट कर दे, साजिद म्यूट कर दे. वो तो चलें, अब तो हो गया ना, लेकिन ये कि आपका मतलब यहाँ कुछ तो हो जाती है. मॉडरेटर कर सकता है म्यूट, whoever is the host. चलिए हो. I have done it. Okay, so अब उन्होंने किया ये है कि इसको जो है उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हमें 3% चाहिए, हमें CNIC नंबर नहीं चाहिए. तो इस पे बहुत शोर हो रहा है, हर सर्कल पे शोर हो रहा है. तो अब इसमें मजीद दोबारा कल या परसों चेंज आ जाएगी. अब आप ये देखेंगे कि रिटेलर ऑनवर्ड जो है वो CNIC की कंडीशन खत्म हो जाएगी, बट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर एंड डीलर ये कंडीशन शायद रिटेन कर ली जाएगी. सो अगेन, क्या वेदर वी वर प्रिपेयर्ड व्हाइल formulating this year's budget proposals or we were not, I don't know. But for now, up till today, this condition of CNIC has been done away with, and this is going to again
नॉन डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम चले जाएं। 2 साल पहले जो उस वक्त के चेयरमैन थे अशफाक अहमद साहब, डॉक्टर अशफाक अहमद, उन्होंने हमसे ये डिस्कस किया था कराची टैक्स बार से कि ये जो 8B की रिस्ट्रिक्शन है कि आपको आउटपुट टैक्स का 90% इनपुट टैक्स मिलता था और 10% ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न भरना पड़ता था, और वो जो रिमेनिंग 10% था वो कैरी फॉरवर्ड 1 साल तक होता रहता था और वो 1 साल के बाद आप रिफंड अप्लाई करते थे। तो हमने चेयरमैन से कहा, मैंने कहा कि जी ये जो अमेंडमेंट है इससे सिवाय हैसल टू द टैक्स पेयर और कोई चीज आप अचीव नहीं कर रहे। तो चेयरमैन एफबीआर कैंडिडली एडमिटेड कि हाँ, हमें टोटल इससे कलेक्शन 8 से 9 बिलियन रुपीस की होती है और हम पे गालियां बहुत पड़ती हैं, तो हम इसको फेज्ड वाइज मैनर में खत्म कर देंगे। तो पिछले साल इन्होंने पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को 8B की रिस्ट्रिक्शन से हटा दिया, लेकिन अगेन इस साल दोबारा से डाल दिया। तो अब या तो ये किसी के कहने पे डाला है या अगेन इसके पीछे क्या इनकी सोच है, I do not know, because anyhow they think that every business has a 10% value addition, which is not correct. 2 amendments हुई हैं जो कि FBR ने और प्रोविंस ऑफ सिंध ने की है। टॉल मैन्युफैक्चरिंग और रेस्टोरेंट्स पे झगड़ा था कि who is going to charge tax, because both were charging tax on toll manufacturing and as well as food stuff prepared by restaurants. So this year sanity has been prevailed और restaurants को FBR ने कहा है कि जी हम नहीं लगाएंगे टैक्स, और टॉल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोविंस ऑफ सिंध ने कहा है कि हम नहीं लगाएंगे टैक्स इस पे। तो टू दिस एक्सटेंट ये एक एम्बिग्यूटी थी जो रिजॉल्व हो गई है, which is a good amendment and should be appreciated. जी मुबीन साहब, you wanted to ask something. जी जिशा साहब, ये जो नॉन डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जो जा रहे हैं, जो जिन चेंजेस की वजह से, तो ये FATF में प्रॉब्लम तो नहीं कर सकता हमारे लिए? आई एम श्योर, देखिए FATF का कंसर्न क्या है कि हमारी चीजें प्रॉपर चलें, हमारी चीजें डॉक्यूमेंटेड चलें, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चैलेंज आएगा इसमें। एंड आई एम श्योर जब आप फाइनल फाइनेंस एक्ट देखेंगे तो उसमें चेंजेस आपको नजर आएंगी, और उसमें जैसे अभी हम 8.1 जो CNIC वाली कंडीशन की बात कर रहे थे, ये चेंज नजर आएगा। सिमिलरली आई एम श्योर कि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन देयर इज नो रूट टू सक्सेस फॉर पाकिस्तान, एंड आई मीन कि देयर इज सो मच ऑफ डेटा being extrapolated from various agencies that FBR has a lot of data. You see, FIA has my incoming and outgoing within from Pakistan and outside Pakistan, और मैं किस फ्लाइट से फ्लाई कर रहा हूँ और मैं किस डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ, तो ये सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में मेरा क्रेडिट एक्सपेंसेस का डेटा टू अ सर्टेन एक्सटेंट FBR के पास मौजूद है, गाड़ी परचेज सेल का डेटा FBR के पास मौजूद है, प्रॉपर्टी परचेज सेल का डेटा FBR के पास मौजूद है। So I do not know what is the wisdom behind removing these things. They should be brought in. They have to sooner or later brought in these amendments again. But मैं close इस पे ही करूँगा जो मैं पूरे बजट पे देखकर मैंने किया। हालांकि उर्दू मेरी अच्छी नहीं है, so please bear with me. शायद कहीं मखरज या तलफ़ुज़ में मैं मार खा जाऊँ, लेकिन सुना देता हूँ फिर भी कि शौक का इम्तिहान जो हुआ सो हुआ, जिस्म जां का ज़िया जो हुआ सो हुआ, सूद से पेशतर है ज़िया और भी, दोस्तों मातमे जिस्म जान और भी तल्ख तर इम्तिहान, और भी तल्ख तर इम्तिहान आगे आते चले जाएंगे। हर थोड़े दिनों बाद एक पेट्रोल की इंक्रीज की सूरत में मिनी बजट नजर आएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी की इंक्रीज प्राइस में एक मिनी बजट नजर आएगा, और आई एम श्योर कि अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ क्लियर पाथ एंड डायरेक्शन, जो वो डीप थिंकिंग वाली बात मैंने शुरू में की थी कि जब तक हम डीप थिंकिंग नहीं करेंगे और हम अपनी सोच, गौर और फिक्र, कुरान शरीफ में बहुत सारी जगह पे आया अफला ताकिलून और अफला तफक्कुरून, तुम गौर करो और तुम फिक्र करो, जब तक हम इस अप्रोच पे नहीं जाएंगे मैं नहीं समझता कि हम इन क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। बट आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक, आई स्टिल सी ग्लास इज हाफ फुल, सो आई एम श्योर दैट जिस तरह से पाकिस्तान ने आज 6 ट्रिलियन का टारगेट अचीव किया, आई एम श्योर इंशाअल्लाह हम 7.4 ट्रिलियन का टारगेट उन्हीं लोगों से रिकवर करेंगे जो टैक्स दे रहे हैं, और उनसे नहीं रिकवर करेंगे जो टैक्स नहीं दे रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर bearing me. I hope
I have been able to give my brief points on the way I have seen the federal budget. Zishan Sahab, I'm not going to allow you to go away. We will conclude properly. मगर एक क्वेश्चन मुझे इसलिए कि मुझे किसी और से ये क्वेश्चन आया है, and it will actually probably reflect back in the eventual budget at some point maybe. ये PDL जो है, इस पर कोई कोर्ट रूलिंग है 50 रुपीस की, ये 30 रुपीस ना 50 रुपीस, क्या ये कोई सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है? I think there is one ruling कि आप certain amount से 30 रुपए से ऊपर नहीं लगा सकते उसकी. I will check that and I can update on that. I'm sure there is one ruling. Yeah, if you can find that. इसलिए कि ये कोई ढूंढ रहा था इसको और वो I will check if you can. Otherwise, I was going to say thank you very much, sir. It's always a pleasure hearing you. I mean, it's always good to see that you can always mix high degree of I don't want to use the word cynicism, but with a certain degree of optimism, which is always good. We don't want to go and slit our wrists, not yet at least. So there is hope still. There is some questions still. Ahmad and first, then Asnan. Sure. Thank you very much for the presentation. I think it was very educational. मैं आपसे एक ब्रॉडर कमेंट भी चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली ये बजट आपने ये क्या चेंजेस हैं वो आपने डिस्कस की कि कहीं पे कुछ बढ़ा रहे हैं, कहीं पे लगा रहे हैं, कहीं पे हटा रहे हैं, जो भी चल रहा है. कोई इसमें आपको ओवरऑल, नॉट इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे, जस्ट लुकिंग एट व्हाट यू हैव, कोई ओवरऑल डायरेक्शन डू यू गेट अ सेंस ऑफ कि मे बी द गवर्नमेंट वांट्स टू टेक or is taking, or the tax structure has been changed in a certain way? कोई systematic उसके अंदर change आपको नजर आती है? It doesn't matter how big or small. Yeah, it's just like what we do best, make random changes here and there just to meet the targets. या कोई? Unfortunately, no. आप मुझे ये बताइए इसमें कौन सी ऐसी चीज है कि जो मुझे instigate करेगी कि मैं यार ये इस सेक्टर में चला जाता हूँ. This is something good happening for me. मुझे कौन सी ऐसी चीज है कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जा रही है इस बजट? मुझे कौन सी ऐसी चीज है कि जो रेंट सीकिंग से रोकना चाह रही है, मां सिवाय वो डीम्ड इनकम के जो उड़ जाएगा कॉन्सेप्ट? मुझे कौन सी ऐसी चीज है जो वेल्थ क्रिएशन के तरफ लेके जा रही है कि मैं वेल्थ को क्रिएट करूं, वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाऊं? मुझे कौन सी ऐसी चीज है कि जो मुझे बता रही है कि हाँ यार देयर इज होप, बिकॉज माय एंटायर कैलकुलेशन, दिस गवर्नमेंट्स एंटायर कैलकुलेशन ऑफ बजट इज कि डॉलर 200 रुपए पे रहेगा, 70 बिलियन की इंपोर्ट होगी, 70 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 200 रुपए मल्टीप्लाई बाय 17% मल्टीप्लाई बाय 3%, यानी मल्टीप्लाई बाय 20%, उसके ऊपर इनकम टैक्स ले लेंगे तो मेरा 80-90% तो यहीं से कलेक्ट हो जाएगा, 80% तो यहीं से कलेक्ट हो जाएगा श्योरली. सो मुझे तो इंपोर्ट बेस्ड बजट लग रहा है ये, कि हम बैंक बहुत हेवीली बैंक कर रहे हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, कि हम डॉलर, यानी एक बीच में एक व्हाट्सएप पे पिक्चर चल रही थी कि IMF ने कहा कि जी 15% आपको मजीद करेंसी को डिवैल्यू करना है. आई डोंट नो हाउ फार इट इज करेक्ट, बट इफ इट इज ट्रू देन वी आर लुकिंग एट 220-25 रुपए का डॉलर देख रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से. आप, आई एम श्योर आप लोग इस पे ज्यादा डिलिबरेट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर 220 रुपए या 225 रुपए का डॉलर हो जाता है तो आपकी इकोनॉमी तो तबाह हो जाएगी. इन्होंने ये जो सुपर टैक्स लगाया है, I was having this discussion कि जब ये सुपर टैक्स लगाएंगे तो उन कंपनीज की आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कम हो जाएगी. जब आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कम होगी तो वो डिविडेंड्स कम देंगे. जब वो डिविडेंड्स कम देंगे तो जो उस पे 15% टैक्स गवर्नमेंट को डिविडेंड्स पे मिलता है वो कम कलेक्ट होगा. सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हेन दे प्रपोज सर्टेन अमेंडमेंट, डू दे calculate every angle of it? I don't know. मुझे कभी बड़ा परप्लेक्स भी होता हूँ, मैं बड़ा गुस्से में भी आता हूँ कि ये करने क्या जा रहे हैं. आप अपनी चलती फिरती इकोनॉमी को तबाह करने जा रहे हैं. इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ाने की बात हो रही है. So do you think that the economy will, the cycle of the wheel will keep rolling? I don't think so. आप आईटी सेक्टर के लिए आपने इस दफा टैक्स को 0 से 0.25 कर दिया, ठीक है, आईटी सेक्टर की डिमांड थी, आपने कर दिया, गुड. बट
इस वक्त हमारा फोकस आईटी पे होना चाहिए सारे का सारे, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल की, उसका 60% रॉ मटेरियल तो इम्पोर्टेड है। सो नेट एक्सपोर्ट कितनी है आई डोंट नो। फाइनल क्या इसको कहते हैं, ये जो कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए जो भी फाइनल रिजीम जो भी किया है, उससे जो इंपोर्टर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ, दो चीजें बताता हूँ, दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो चीजें होंगी, मेरे टैक्स रिटर्न में सिंगल लाइनर अमाउंट आएगी, मेरे टैक्स रिटर्न जल्दी फाइल हो जाएंगे या नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लाइंट्स का बना के फाइल करना। एज अ टैक्स कंसल्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। तो मेरे लिए तो बड़ा आसान है कि मुझे एक इंपोर्ट का फिगर डालना होगा, एक टैक्स का फिगर डालना होगा, दैट्स दैट। टैक्स पेयर के लिए आसानी है, उसे किताबें मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, उसको अकाउंटेंट नहीं रखना पड़ेगा, उसको स्टॉक्स की वैल्यूएशंस नहीं करनी पड़ेंगी, तो टैक्स पेयर के लिए बड़ा आसानी कर दी। तो टैक्स पेयर तो बड़ा खुश हो जाए कि हिसाब किताब के झंझट से मैं बाहर निकल गया, जो 2 साल से मैं आई वाज फोर्स्ड इनटू इट। सो आई डोंट नो, I seriously don't know if we want to document the economy, if you say that vision is that we need to go forward, and I'm sorry this was not the step of going forward. I have a question. One of the things I believe in very strongly, and I maybe not necessarily my other colleagues believe in it, कि जो investment होनी चाहिए किसी चीज में वो tax neutral होनी चाहिए. It should not be based कि tax should be the incentive for deciding कि कैसे. इसमें तो आप tax neutrality के खिलाफ जा रहे हैं कि scale होना बुरी चीज है, industry में होना बुरी चीज है, जितना documented हो, जनरली इंडस्ट्री जो है वो डॉक्यूमेंटेड होती है, तो वो बुरी चीज है. So you're incentivizing the wrong things, and you have a perverse incentive in the system. Actually, somebody need to tell them कि भाई ये जो भी चीज आप करने जा रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला. ठीक है, आप टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, आप आवाम को खुश भी कर देंगे, लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद क्या होने जा रहा है. मैं वो जो अली हसनैन साहब की जो प्रेजेंटेशन आपने दी थी वो थोड़ी बहुत मैंने सुनी 1-2 दिन में, और आप वही बात उसमें कर रहे थे कि जो चीजें चल रही हैं अगर हमने इस यंगर पॉपुलेशन को किसी क्लियर पाथ की तरफ हम नहीं लेके गए तो दे विल बिकम, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन एसेट फॉर पाकिस्तान, दे विल बिकम दैट liability, and a liability which we cannot afford to keep. And I'm sure कि गवर्नमेंट को जो है इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. तो I don't know whether this budget is inducing the government or us to go towards documentation or not. I don't know. Yes, please. I'm available for questions now. Another question if anybody has. Yeah. Any more questions? If I may, actually, I have many questions. सबसे पहले तो ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया, and I believe I speak for everyone when I say that we had so much to learn from you. हम लोग बड़ी big picture बातें करते हैं, conceptually बात करते हैं, but it's actually the tax code in large part that defines incentives for firms, and of course the lack of compliance that you mentioned. And so this is definitely an area to learn more about. मेरे कुछ छोटे सवाल हैं, maybe we can skip those. I'll just briefly mention what they are. So you said that, for example, गाड़ियाँ जो हैं वो 50 लाख से ऊपर 2%. Is that additional to your income tax? फिर आपने poverty alleviation tax का जिक्र किया. I just was wondering if those type of taxes, और अब जो दूसरा आप बता रहे थे, there was another tax that you mentioned, the internally displaced, for example. तो इस तरह के जब टैक्स लगते हैं, are they firewalled for those purposes या वो general? No, not at all. Not at all. They never firewalled. Right. उसके बाद, honestly, the final tax conversation मेरे ऊपर से गुजरी. But I think I'd like to ask two questions mainly. One is just if you could describe better or what you think laypersons can read. Well, in the sense, economist laypersons who are interested in the stuff, in the nitty-gritty of it, should read to get a better handle on this side, because I realized today that it's very important to get that micro level view.
दूसरा ये है कि क्या FPR क्लॉज वाइज ये देखती है कि वो कि कोई क्लॉज जो है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और उसका इकोनॉमी के ऊपर असर क्या है? Actually, they're supposed to do that. They're supposed to do that. कि कोई भी अमेंडमेंट जो लेके आ रहे हैं उसका रेवेन्यू वाइज इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और ये इनकी बजट एक्सरसाइज का पार्ट होता है कि ये इससे कितना एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करेगी. तो ये एक्सरसाइज ये लोग जरूर करते हैं, बट दिस इज नॉट पब्लिक. So one can, I mean, if we have good connections, we can ask for it and we can get this bifurcation. Right. And I guess the last question is for academics who are interested in this type of work. What type of data or exploration based on publicly available data do you think is missing that we would want to do? So देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी पिछले कुछ दिनों पहले जब ये POS पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था, तो मेरा एक ट्रेडर मेरा क्लाइंट था जो लाइट हाउस पे सिटी कोर्ट के सामने उसकी दुकान थी, और वो ही सेल्स पंखे एंड गीजर्स, एंड उसका सेल कोई बहुत ज्यादा नहीं था, बट उसमें जो है उसको चैलेंज क्या आ रहा था. उसने चैलेंज ये किया कि जी मेरा तमाम माल जो है वो पंजाब से आता है और मुझे 1 रुपए की इनवॉइस नहीं मिलती. और पीओएस से ये करने क्या चाहते हैं, इनका फोकस क्या है पीओएस लगाने का, ये रिवर्स इंटीग्रेशन कराना चाहते हैं, बॉटम अप इंटीग्रेशन कराना चाहते हैं. होनी चाहिए थी टॉप डाउन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट सेक्टर पे सबसे ज्यादा इवेजन और चोरी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर इनवॉइस ही नहीं इशू करता. तो जब वो इनवॉइस इशू नहीं करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर और रिटेलर उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता. जब इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेगा तो फिर आएगी टैक्स की चोरी कि मैं अपनी चीजों को करेक्टली डिक्लेयर नहीं करूंगा. मैं आप लोगों के बहुत सारे डिस्कशंस और इकोनॉमिक्स के जो भी कोई ऐसी चीज होती है सुनने की कोशिश करता हूँ. मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा जब देखता हूँ तो आप बहुत सारे लोग, इवन मोस्ट ऑफ देम, यू गाइज आर ऑलवेज टॉकिंग ऑन द मैक्रो साइड ऑफ इट, बट नोबडी स्पीक्स ऑफ द माइक्रो लेवल, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज, आई गेस. कि हम बड़ी साइड को तो कवर कर लेते हैं, लेकिन जो निटी ग्रिटीज है हम उसको भूल जाते हैं. अब हो क्या रहा है, मैंने एक एक्सरसाइज करना शुरू की कि अब पंखे बनाने वाली सबसे टॉप मैन्युफैक्चरिंग को देख ले, फिर मीडियम लेवल को देख ले, फिर लोअर लेवल को देख ले, और इनकी कंजम्पशन पैटर्न्स को आप देख ले, तो आपके पास इंडस्ट्री डेटा जो है वो बनना शुरू हो जाए. अनफॉर्चुनेटली एफबीआर के पास ऐसा इंडस्ट्री डेटा नहीं कि जो लार्ज टैक्स पेयर है वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है वर्सेस द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड, मीडियम वाला कितना कर रहा है और लोअर लेवल वाला कितना कर रहा है. अगर हम इस छोटे से किसी एक सेक्टर को पकड़ के उसके ऊपर ये एक्सरसाइज करके एक्सट्रैपोलेट कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आना शुरू होती है. और ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, पंखा बेचने वाली और गीजर बेचने वाली. तो ये एक छोटा सा बहुत स्मॉल, बहुत माइक्रो लेवल पॉइंट है, बट इट हैज इट्स इम्पैक्ट. सो परहैप्स आई डोंट नो आप इस पे किस तरीके से काम हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि मेरा फोटे नहीं है इकोनॉमिक्स, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों से सुन के समझ में आने लगी है. लेकिन ये है कि इसके ऊपर जरूर काम होना चाहिए. इंडस्ट्री सेक्टर वाइज पैटर्न हमारे पास नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्री रेशियोज नहीं है. तो अगर आज आप ये कहते हैं कि, मैं आपको बताता हूँ, मुझसे सेल्स टैक्स में एक साहब बहस करने लगे. अगर टाइम है तो मेरे पास भी 10 मिनट है, मैं 10 मिनट में अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 1-2 बातें. सेल्स टैक्स की चोरी क्यों होती है मैं आपको बता दूं. पाकिस्तान में लेट्स से 175,000 लोग हैं जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं. अब मैं और अली हसनैन साहब दोनों ये मोबाइल बनाते हैं, ठीक है जी. अली हसनैन साहब सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और मैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हूँ. दोनों 100 रुपए की कॉस्ट है सेलिंग प्राइस. आप जो है 100 रुपए के ऊपर 17 + 3% चार्ज करेंगे. मैं मोबाइल की एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, प्लीज इसको किसी भी कमोडिटी पे ले लीजिए. आप 100 रुपए पे 17 + 3% 120 रुपए का बेचेंगे. मैं जो हूँ उसे 100 रुपए का बेचूंगा, तो मोइन साहब या समीर साहब या जावेद साहब या आप सब लोग किससे खरीदना पसंद करेंगे? 100 रुपए वाले से. गोज विदाउट सेइंग, नो ब्रेनर है. तो आप अली को बिजनेस में रहने के लिए क्या करना हो? अली वुड टेक
flying invoice from an जिसने आलू चावल कुछ भी खरीदा हुआ है और उस पे सेल्स टैक्स पे किया, and then Ali would use that input to challenge me as a competition, and then not only he would take an invoice of 17 rupees, he would take an invoice of 34 or 35 rupees to throw me out of the business and establish his monopoly. So in doing so, Ali would then start कि यार ये तो मजा आ रहा है मुझे, मैंने ज़ीशान को बिजनेस से बाहर फेंक दिया, अब मैं रिफंड लेना शुरू करता हूँ सेल्स टैक्स का। तो अली रिफंड लेना शुरू करेंगे और वो बंदा जिससे ये इनवॉइस ले रहे होंगे उससे प्रॉपर ट्रांजैक्शन भी हो रही होगी, वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो कि इन्होंने, उस बंदे ने अली को बेचा और अली दिखा रहे होंगे कि अली ने उस बंदे से परचेज किया, तो क्रॉस मैचिंग हो रही होगी डेटा की, लेकिन इन रियलिटी इट विल बी अ पेपर ट्रांजैक्शन and Ali will be a successful businessman. Ali will say like Miftah Ismail, मैं तो जितना टैक्स देता हूँ इतना इमरान खान ने जिंदगी में नहीं दिया होगा. By the way, that's all sales tax. That's not income tax. So that is not their taxes. It is what the income tax they should compare with anybody. So this is where the tinkering of law comes into place. अब आप रेट को सिंगल डिजिट में ले जाइए, 8-9%, 5%, स्मगलिंग वायबल नहीं रहेगी, अंडर इनवॉइसिंग वायबल नहीं रहेगी, जो आप परचेज कर रहे हैं इनवॉइस, फ्लाइंग इनवॉइस, क्योंकि उसकी भी एक कॉस्ट आप दे रहे हैं 4-5-6%, तो वो वायबल नहीं रहेगी और वो सारा डेटा डॉक्यूमेंट होना शुरू होगा. सो इस पे जो भी आप लोग हैं, इस पे गवर्नमेंट को कहें कि रन सिमुलेशंस, एंड आफ्टर रनिंग सिमुलेशंस सेक्टर बाय सेक्टर अप्लाई करते चले, जहां पे सबसे ज्यादा चोरी या स्मगलिंग है उस पे अप्लाई कर लीजिए. टेक एन एग्जांपल, वन ऑफ माय क्लाइंट्स इज वन ऑफ द टॉप टैक्स पेयर्स ऑफ पाकिस्तान, importer, he's an importer, so he does not come in the corporate, but in the AOP his number is within that 100 benchmark. So पाकिस्तान का 200 नंबर का टैक्स पेयर होगा, लेट्स पुट इट दिस वे. मैंने उससे कहा कि जी अगर ये सेल्स टैक्स का रेट 5% हो जाता है 17% से, बोला जी हमें 5 नहीं 10% कर दे. मैंने कहा अगर ये 10% हो जाता है तो फिर क्या होगा? बोला जितना मेरा इंपोर्ट है वो डबल हो जाएगा. अगर मैं 10 बिलियन इंपोर्ट कर रहा हूँ तो ये 20 बिलियन हो जाएगा. मैंने कहा वो क्यों? क्योंकि उसने कहा जो जितना भी स्मगल्ड है गुड्स वो वायबिलिटी नहीं रहेगी. So that's where we need to think. That's where we need to go. So just to मैंने पहले सवाल किया था कि further reading अगर आप कुछ, because economics of taxation की किताबें तो हैं लेकिन उनका हमारे मुल्क में इतना फायदा नहीं होता. बेसिकली आपको अगर टैक्स लॉ समझना है तो आपको बेयर एक्ट, बेयर ऑर्डिनेंस तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन देयर आर दीज बुक्स जिसमें सैलरी टैक्सेशन के ऊपर, बिजनेस टैक्सेशन, बिजनेस इनकम के ऊपर कुछ एग्जांपल्स और उसकी क्लॉजेस एक जगह की हुई है. आई कैन सजेस्ट टू यू, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा. I'll ask Samir and then Moin if we can sum it up. Yeah. Samir. Thank you, Zishan Saab. Good to see you again. And excellent presentation, excellent content as always. मेरा एक जनरल सवाल है, बजट से रिलेटेड नहीं है. आपने 2 दफा जिक्र किया कि बड़ी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है. At the same time, one hears a lot of this ends up in appeals and courts and so forth. So how reliable are these tax collection figures, or how certain? This is the net collection. This is not the amount that has been levied as a tax. So this is not challengeable. This is actually cash. This is cash amount. This is cash accounting. I mean, yeah, and cash. This is something to be appreciated. I whatever are the circumstances, whoever is the government must be appreciated. FBR has done it. Understood. So despite the fact that वो import से collect हुए otherwise. Thank you. Moin. जी, थैंक यू ज़ीशान, बड़ी ज़बरदस्त आपकी प्रेजेंटेशन थी. 2 क्विक क्वेश्चंस. एक तो ये कि ये जो सुपर टैक्स है, ये जो मुझे समझ आया कि ये लास्ट ईयर पे लगेगा, लाइक 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर पे. तो ये एक मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंज चीज़ लगती है कि बजट तो आगे के लिए बनता है, तो ये बजट में कैसी क्या चीज़ आ रही है जो पिछले साल के लिए है. तो एक तो ये, इस पे आपके थॉट. दूसरा ये कि ये है तो काफ़ी नेगेटिव रिग्रेसिव किस्म का बजट, लेकिन अगर आप
इस तरह से देखें कि जी IMF को रेवेन्यूज चाहिए थे और गवर्नमेंट को ये सोचना था कि कहाँ से वो रेवेन्यूज लें, जो कि चले इन डायरेक्ट से ले रहे हैं वर्सेस इनडायरेक्ट, तो उस तरह से रिग्रेसिव नहीं है। और फिर ये कि ठीक है, द रिचेस्ट जो बड़ी कंपनीज हैं वहां से ले रहे हैं, ऑब्वियसली इट हर्ट्स देम, लेकिन पॉलिटिकली लीस्ट डैमेजिंग तरीके से बिग चंक्स ऑफ रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट को चाहिए थे तो वो इस तरह से ले रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि ये वन टाइम हर्ट है, और समहाउ मना लें लोगों को कि जी ये कोई चारा नहीं था। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Okay, so the government has the power to levy a tax from a retrospective date, and if it's an act of a parliament, we all have to pay it. So this previously पहले भी ऐसा कुछ सालों में होता रहा है कि गवर्नमेंट ने उसको नॉर्मली जो भी ये बजट है वो एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई से, और रेट्स वगैरह जो भी चेंज होंगे वो 1 जुलाई से होंगे, लेकिन कुछ चीजों के लिए यस उन्होंने इसको प्रिसाइसली लिख दिया है कि ये टैक्स ईयर 2022 पे अप्लाई होगा। सो ऑब्वियसली फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस का एक कॉन्सेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक ये हल हुआ है कि वो लॉ कि जो मेरी ट्रांजैक्शंस को या मुझे इफेक्ट करता है अदरवाइज मेरे क्लोज ट्रांजैक्शंस के ऊपर, क्योंकि ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं था मेरा, वो बैड लॉ कहलाता है और कोर्ट्स ने उसको उड़ाया हुआ है। बट ये सुपर टैक्स की एग्जांपल हमारे सामने है। सुपर टैक्स को अभी तक हाई कोर्ट ने अपहेल्ड करके सुप्रीम कोर्ट में ले गया गया है, तो ये कर तो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आ जाइए जो रिचेस्ट के ऊपर किया है, तो टैक्सेस तो जैसे मैंने बताया कि 1000-1500 लोग ही दे रहे हैं, 85% टैक्स हमारा पाकिस्तान का। सो उनसे ही आप मजीद लेना चाह रहे हैं। और वो होता क्या है कि अगर आप एक जनरल एनालिसिस करेंगे तो हर टैक्स पेयर पार्ट ऑफ कॉस्ट बनाता है टैक्स रेवेन्यू नोइंगली, और वो किस तरीके से होता है कि वो कॉस्ट में बिल्ट इन कर देता है, तो ये भी चीज कॉस्ट में बिल्ट इन होने चली जाएगी। अब तो नहीं हो सकती, अब तो जेब से जाएगी, चूंकि आप जून में लेकर आए और जून में सारी प्राइसेस वगैरह सब सेटल नहीं, तो यस दिस इज अ वन टाइम कॉस्ट। यस यू आर स्क्वीजिंग दोज हु आर स्क्वीज्ड टिल एवरी बिट ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। वो आपने गन्ने के जूस निकलते हुए देखा है, गन्ने का जूस कैसे निकलता है? वो एक गन्ने को 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 6 दफा, 10 दफा, और जितना लास्ट लिमिट होता है ना, तो ये उतना स्क्वीज कर चुके हैं लोगों। अब यहाँ से आएगी फिर रिजेंटमेंट। सो परहैप्स यस, कहने को तो आप 17 को 18% कर देते सेल्स टैक्स रेट को, इनकम टैक्स को 35 की जगह 40% कर देते, तो वो भी डायरेक्ट टैक्स ही होता, वो भी निकल जाता इन्हीं अमीरों से। तो बहरहाल आई डोंट नो, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स मैं इनको कहता हूँ कि ये शायद इससे कुछ ना कुछ करेक्ट कर लें, लेकिन इनसे नेट रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट कितना है उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई 30-40 कंपनियां हैं या कुछ एक लिस्ट व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करेगी, इसके ऊपर लगेगा और बाकी सब पे नहीं। Great. I would just, Ali Astan is saying he could have sat up in a private conversation with me, saying he could have sat up till midnight listening to this. Truly speaking, I mean, we have so much to learn from you and, this kind of discussion. And I think one of the reasons why we have EAG is for these kind of forums. So Zishan Saab, I'll bother you again in due course, and we will probably do a larger forum and probably do a webinar with you on once the tax bill is formed, and we can have a discussion, because I think we need a greater understanding of what is happening, and it is only through greater understanding of the public, or at least a greater number of people, that change is instituted. और कई चीजें तो हमारी गट फीलिंग होती है, नाराजगी होती है। आज मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें मैंने कंपेयर करा है एंसियन रिजीम से, कि वहां भी एक बड़ा अनफेयर सिस्टम था which led to revolution. मगर I think I didn't get it completely wrong, but it is a bit like that, where a very small section of society, the third estate as it is, keeps getting taxed again and again, जो आपने कहा, और अब resentment बढ़ती जा रही है. So we are creating unpleasant
but more than that the resentment and वो सब मुझे जो अफसोस आता है कि ये बड़ी inefficient चीज है और effective नहीं है और जो हमारी overall economic goal है, I'm sure मिफ्ता की भी goal जो this is not what his goals are. So that is the unfortunate thing. His goals would be for industrialization, his goals would be for greater equity, but I'm sure in haste they have missed out that. But we can go on forever, but we will probably ask you again. I think we should call it a day, इसलिए कि अब कोई 9 बजने लगे हैं, आप लोग को सारों को खाना खाना है, मुझे भी जाके खाना खाना है, but we can always meet again. मगर Zishan साहब, I will not ask you, but we will ask you to do a webinar at a later stage if it's all right. I'm always available. Let the finance sector come, and then perhaps we can make a presentation कि क्या bill था, क्या act है और क्या law था. तो हम उन तीनों को compare कर लेंगे, तो उसमें बड़ा मजा आएगा मेरे ख्याल से. नहीं, I think webinar करते हैं जिसमें general audience को भी बुलाते हैं. So we'll really appreciate your coming to that. And I think ये बहुत ही एक हमारे लिए तो बहुत ही educational थी. हम लोग एक press release निकालेंगे कल. Hopefully we'll try and put it together quickly. उसमें आपका नाम जरूर mention करेंगे if you allow us to do so, and we will pass it through you before we do so. ये 1-2 दिन लग जाता है इसलिए कि हमारे यहाँ academics बहुत हैं और academics से कोई चीज पास कराना बड़ी difficult चीज होती है. It's been a pleasure talking in front of all these great minds, and obviously कि वो ये होता है ना कि मेरे वालिद हमेशा कहते हैं कि दुनिया में सब चीजें खत्म हो जाती हैं लेकिन बांटने से खत्म हो जाती है. एक चीज है जो बांटने से बढ़ जाती है, वो है इल्म. कि आप इसको जितना बांटेंगे ये बढ़ता चला जाएगा, ये कम नहीं होगा. बाकी दुनिया में हर चीज बांटने से कम होती है. So I am always there. Whenever you will order me, I'll be there. Yes sir. मैं एक चीज कहूँ कि आपके वालिद जो थे वो एक नोबेल लॉरिएट है, क्या नाम है, पॉल रोमर, और वो यही कहता है, knowledge about the indivisibility of knowledge and how it multiplies and there is a multiple effect of it. So आपके father was a precursor to Paul Romer, it seems. उनको भी शायद Nobel Prize मिल जाता. So anyway, thank you very much sir. This आप बांटने की बात करें, नेक्स्ट टाइम आपने हमें ये भी समझाना है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है और ये जो टैक्स लॉज हैं ये कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं और हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं. क्योंकि आई थिंक हम वही जो अली बात कर रहा था, हम एक बड़ी स्टेटमेंट तो दे देते हैं लेकिन हमें भी नहीं अंदाजा कि किस तरह के लॉज एग्जिस्ट करते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं. मैं आपको एक चीज बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. ये जो आईआरएस का सिस्टम है, मैं वैसे इसको बाय द वे वायरस कहता हूँ. ये आईआरएस के सिस्टम पे कभी आप लॉग इन कीजिएगा और आप अपनी रिटर्न खुद से फाइल करने की कोशिश कीजिएगा, आपको लग पता जाएगा जनाब आली तभी तो आपके साथ हो क्या रहा है. लेकिन बाय द वे मैंने एफबीआर की आईआरएस की मोबाइल ऐप पे 3 मिनट में भी टैक्स रिटर्न फाइल किया है. सो देयर आर सम गुड थिंग्स अबाउट एफबीआर एंड देयर आर सम नॉट सो गुड थिंग्स अबाउट एफबीआर. बट जो टैक्स आसान ऐप है फॉर सैलरी टैक्स पेयर्स, ट्रेमेंडस ऐप, वन शुड look into it. And for salary taxpayers, it's just 7 clicks away. You can file your return. So, but yes, we can discuss on that. No problems. Whenever you need me, आप मुझे थोड़ा सा heads up दे देंगे तो मैं उसकी कोई presentation sort of बना लूँगा, and then perhaps we can deliberate and discuss. या webinar के लिए ना फिर हमें भी educate करें और मैसेज को भी educate करें ताकि हम फिर जा सकें. I think webinar तो बन रहा है. Definitely we will do that inshallah immediately soon after the तो आपका टाइम और जाया करेंगे मगर we really appreciate. वो कुछ ना कुछ सीख के उठेंगे हम सब लोग. चले, thank you very much. This has been fantastic. यार I have to talk EAG group. हम लोग कोई PR कोई तोहा, will you try or will someone try? एक मैंने आर्टिकल लिखा, उससे कोई कोशिश कर सकता है. Samir, will you want to see if that can be, or no, you don't want to? I have an article, which you're editing actually. I haven't taken a look yet. I'll take a look. So okay, but I don't know if that can be. Anyway, I'll talk to Ali Salman and see. There's a presentation, and if we can try and put together a PR for tomorrow, or shall we wait for the act to come out? Anyway, let's discuss it a bit later. We can discuss it in the group. All right, but thank you so very much for having me. Oh, shukriya. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.